Hi, grade second. I have already shared my previous video of have is that again in our group. So you just check that video again. So it will be easy for you to understand this concept. Still, I'll revise it once. Have and has are the helping verbs which we use for present tense. When we are using present tense, we use have and has, and had we use for the past tense. For this, we have to understand the sentence, how it is used, and in the sentence only we'll get the idea about past tense, maybe through verb, maybe through some words that is yesterday, earlier, previous. There are many words. So for this, strictly you have to understand the sentence properly. You have to read the sentence properly. Then only you will get the idea of using have, has or had. Right? With this, there is one more rule for have and has that I have already told you, that I have, we have. With I we use have, with we use have, with you, that is singular, we use have, with plural you we also use have, with he, she and it. These are the only pronoun with which we use has, and with they we use have. So this is also you have to keep in mind which pronoun will come as your sentence. You have to understand. Once you will make a habit of understanding each and every sentences, you just have to click your mind with, is this a pronoun? Is this a noun? Is this a... In each sentence, if you will understand all this concept and revise again and again, you will surely make a habit of understanding each word, and which will help you in further standards. That's grade 3rd, 4th, 5th. You will have a habit. आपको एक हैबिट हो जानी चाहिए कि आप जब भी पढ़ते हो यू शुड अंडरस्टैंड. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके. लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा था, नेमिंग वर्ड पढ़ा था, स्पेशल नेम्स पढ़े थे, विच आर नाउन कॉल्ड, विच आर नाउन्स. नाउ इट इज कॉल्ड एज कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. आप हर सेंटेंस के साथ सारे टॉपिक्स रिवाइज करोगे, आपके लिए ये चीज बहुत इजी हो जाएगी. सी दिस. आसिफ हैज अ टॉय. Asif is a special name for boy. For boy, we use he. So with he, we'll use has. He has a toy. Right? We dash presents for Sanjana. We dash presents for Sanjana. मतलब आप जब भी सेंटेंस समझते हो, आप उसको तुरंत ही हिंदी में या फिर अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में मन में, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन हिंदी. बट जब भी आप एक हैबिट डाल दो, आप अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में मन में ही अगर उसको ट्रांसलेट कर लोगे, इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस. और उस अंडरस्टैंडिंग के साथ आप क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल, वी डैश प्रेजेंट्स. प्रेजेंट्स मीन्स गिफ्ट फॉर संजना. हमारे पास संजना के लिए गिफ्ट है. सो वी के साथ क्या यूज होता है? हैव. सो वी हैव प्रेजेंट्स फॉर संजना. सो विल यूज हैव. रोहित डैश अ किटन विथ हिम yesterday. अगर ये यहां yesterday नहीं होता, रोहित के पास एक किटन है,
ठीक है, अगर यहाँ yesterday नहीं होता तो हैज आता. क्यों हैज आता? क्योंकि रोहित इज अ बॉय. फॉर बॉय वी यूज ही एज माई प्रोनाउन एंड विथ ही विल यूज हैज. करेक्ट. सो विथ ही वी यूज हैज. बट द वर्ड इज yesterday. yesterday मतलब मैं कल की बात कर रही हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइट नाउ. सो what I have to do is, I don't have to use has. I used to have had. मुझे use करना पड़ेगा had. Why? Because for past tense I used to have had. मुझे had use करना पड़ेगा. ठीक है, आपको इनका समझ में आया डिफरेंस? हैज हमने क्यों यूज नहीं किया? हमें हैज यूज करना होता अगर ये यस्टरडे वर्ड नहीं दिया होता. इसीलिए मैं कहती हूं यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस वेरी क्लियरली. आपको सेंटेंस बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करना है. देन ओनली यू विल बी एबल टू कंप्लीट दिस. आई डैश अ पेट डॉग. मेरे पास पेट डॉग है. ठीक है, तो यहाँ पे yesterday past tense कुछ भी नहीं है. सो यूज have and had एंड I के साथ have. सो यू हैव टू मेक दिस हैबिट. I have, we have, you have, he, she, it has, they have. सो हम तुरंत सारे, अगर have has यूज करना है हम उसके रूल बोलेंगे. अगर past tense है तो हम had यूज करेंगे. नाउ I won't go for this time this every time. I'll just concentrate on the sentences now. I dash a pet dog. I have a pet dog because I have. Leela dash a new dress. Has or have? It's has. Why it is has? Because Leela is a girl. For she has. All the books have their own cricket bats. All the books that are plural is maybe they, for it also they. So all the books have. It's plural, so it's have. Yesterday Raman was absent. He dash fever. Yesterday is the past tense. Was is also past tense. So had. Yesterday Raman was absent. He had fever. Rahul and Roma has many story books. They love reading. यहाँ हमें तीनों में से कोई एक चीज यूज करने को बोला है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई दूसरा वर्ब या ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो हमें बताए कि ये पास्ट टेंस है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस वेरी वेल. आपको सेंटेंस बहुत इजीली समझना होगा. हर वर्ड को आप, दो हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, बट वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेंटेंस इन योर ओन लैंग्वेज. इफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी यू कैन अंडरस्टैंड द सेंटेंस इन हिंदी. इफ यू आर कंफर्टेबल इन गुजराती यू कैन अंडरस्टैंड योर सेंटेंस इन गुजराती. यू हैव टू अंडरस्टैंड, देन ओनली यू कैन गिव द करेक्ट आंसर्स. Now you understood why we used has instead of had. So my sentence is Rahul and Roma has many storybooks. They love reading. He had a cold. Let him go home. He has. He has. Let him go home is we are informing them कि उसको जाने दो. ठीक है, तो उसको अभी भी कोल्ड है. सो he has a cold. Let him go home. उसको घर जाने दो. So had is not there. We'll use has. My mother has a car. The car keys. My mother has the car keys. Raman had 2 balloons yesterday. रमन के पास कल 2 बलून थे. Today he has 1. आज उसके पास एक ही है.
I have 5 red roses. मेरे पास 5 red roses है. मैंने have यूज किया because I के साथ have यूज होता है. She has a pet cat named Toto. उसके पास एक pet cat है जिसका नाम टोटो है. We have many charts in our classrooms. हमारे क्लासरूम्स में बहुत सारे चार्ट्स लगे हुए हैं. Mona has a car. She drives the car to the office every day. मोना के पास कार है और वो रोज कार ड्राइव करके ऑफिस आती है. She had an extra pen with her, so she gave one to me. Gave यहाँ ऑलरेडी ये एक्शन हो चुका है और ये एक्शन ऑलरेडी हो चुका है. दैट मीन्स दिस वॉज इन पास्ट. उसके पास एक्स्ट्रा पेन था तो उसने मुझे दिया. उसके पास एक्स्ट्रा पेन था. सो हैड. शी हैड एन एक्स्ट्रा पेन विथ हर, सो शी गेव वन टू मी. इसलिए उसने मुझे एक दे दिया. सो विल यूज हैड क्योंकि ये पास्ट टेंस है. गिव, गिव का पास्ट टेंस गेव. आई हैव सम वर्क टू फिनिश. मुझे थोड़ा काम खत्म करना है. आई हैव सम वर्क टू फिनिश. 18. डू यू हैव माई पेन. क्या आपके पास मेरा पेन है. सो हैव. अर्लियर राशिद हैड अ पेट डॉग. अर्लियर, अर्लियर मतलब पहले. पहले राशिद के पास एक पेट डॉग था. अगर अभी भी वो डॉग होता तो आगे हमें बताया होता. अभी हमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. ये पहले की बात है. सो अर्लियर. शिखा हैड अ मीटिंग यस्टरडे. जैसे यस्टरडे, यस्टरडे मतलब कल शिखा की मीटिंग थी. मतलब पास्ट टेंस. सो यूज हैड. वी हैव अ ब्लैंकेट. इट कीप्स अस वार्म एट नाइट. हमारे पास एक ब्लैंकेट है जो हमें रात को वार्म रखता है. शेखर हैज अ यंगर ब्रदर. शेखर के पास, शेखर का एक छोटा भाई है. राइट. सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. That's it for the day, and your homework is you will complete this exercise in your notebook. With this, I'll end this class. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.